Maths 2, chapter number 4. First exercise we did, that was based on bivariate frequency distribution, in which we calculated bivariate table, marginal table, and the conditional frequency distribution table. Now the second exercise based on chi-square statistics. Chi-square, chi का साइन ऐसा है, chi-square काइंड ऑफ x, बट x थोड़ा सा कर्व्ड रहेगा और एक स्ट्रेट रहेगा. इट इज अगेन फॉर्मुला बेस्ड एंड फॉर्मुला इज इजी. अगर तुम्हें chi स्क्वायर निकालना है, the formula is summation of, in bracket, O minus E the whole square upon E, where O is observed value, E is expected value. तो तुम्हें chi स्क्वायर के लिए बस दो ही वैल्यू चाहिए, O और एक E. O is called as observed value and E is called as expected value. Okay, that's it. Now I will start by taking reference as a question. फॉर्मूला यही है बस, chi स्क्वायर का ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड द होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड और उसका सम. ओ ऑब्जर्व्ड वैल्यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, दिया रहेगा ये. एक्सपेक्टेड वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी एक छोटा सा फॉर्मूला दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर. एक्सपेक्टेड वैल्यू, अगर तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला है रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम डिवाइड बाय n. इट इज r मल्टीप्लाई बाय c डिवाइड बाय n. r multiply by c divided by n. Row multiply by column divided by n. Now, तो ये दो फॉर्मूला है. chi स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें o और e चाहिए, o ऑलरेडी गिवन रहेगा. e निकालने का फॉर्मूला ये है, r into c divided by n. Okay. Following table shows the classification of application for secretarial and for sales position according to gender. Calculate the value of chi square statistics. So here we'll have to calculate the value of chi square. तुम्हारे पास टेबल ऐसी दिया रहेगा,
We have 2 rows and 2 columns. Start कैसे करें? सबसे पहले again make a table. This is offered, denied. This is male, female. Here you will have to write total and total. Total निकालना compulsory है. Now we'll fit the value. 75, 150, 25, and 50. These 4 values are my observed value. These are my observed value. ठीक है. I want to calculate expected value. ये चारों का ही expected value जाएगा. जितने observed रहेंगे उतने expected. क्वेश्चन में या तो 4 ऑब्जर्व वैल्यू दी रहेगी या तो 6 दी रहेगी, मतलब इधर 4 और 6. In my question we have 4 observed value. We'll calculate the total. 75 plus 150. तो भी horizontal का addition करो, get the total. 75 plus 150, 225. 25 plus 50, 75. Get the vertical addition. 75 plus 25, फिर horizontal या vertical add कर दो. 100 plus 200, or even 225 plus 75 is 300. The last value is representing n. याद रखना. The last value is representing n. We have this 4 observed value, जिसको मैं circle कर रहा हूँ. 1, 2, 3, and 4. This 4 observed value का I want to calculate the expected value. I want to calculate the expected value. Expected value का formula है R into C, that is row into column divided by n. This horizontal line, मतलब this is called as row. Horizontal line is called as row and the vertical line is called as column. ठीक है. We have 4 values. Matrix में अगर तुम्हें पता रहेगा, matrix में if I'm having a matrix A of 4 values, तो जो उसके हर एक एलिमेंट होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, इट इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. इट इज रिटन एज A11, फिर A12, that is first row but second column. A21 and A22, A11, A12, A21 and A22. So we have these 4 values. A11, A12, A21 and A22. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, दिस इज माय A11, but this is observed. This is observed 11, observed 12, observed 21 and observed
टू टू। ये फोर वैल्यूज है, मुझे इनके फोर एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू 75। फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू 75, इसका मुझे निकालना एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर्मूला क्या था? रो इनटू कॉलम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। रो इनटू कॉलम डिवाइड बाय एन। अब 75 के लिए ध्यान से देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं 75 ले रहा हूँ, इफ आई एम टेकिंग 75, ठीक है, तो इसका आर और सी क्या रहेगा? आर मतलब रो का टोटल और सी मतलब कॉलम का टोटल। तो ये मेरा 225 विल बी आर एंड 100 विल बी सी। दिस इज आर, दिस इज सी, और ये मेरा एन रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी तुम ऑब्जर्व वैल्यू ले रहे हो उनका हॉरिजॉन्टल का टोटल एंड वर्टिकल का टोटल, दैट इज रो का टोटल एंड कॉलम का टोटल। तो रो की टोटल में जो वैल्यू रहेगी दैट इज माय आर, एंड कॉलम की टोटल में जो वैल्यूज रहेगी दैट इज माय सी। तो एक आर हो जाएगा और एक सी, आर एंड सी। सो विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ओवर हियर। तो यहाँ पे आर कितना रहेगा? 225। सी कितना रहेगा? 100 डिवाइड बाय एन कितना रहेगा? 300। ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है। दो जीरो कैंसिल। 225 डिवाइड बाय थ्री, थ्री सेवन से 21, थ्री फाइव से 15, 75। तो फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू 75 थी और इसका मैंने एक्सपेक्टेड निकाला, वो भी 75 ही आया, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड वैल्यू भी 150, ये ऑब्जर्व वैल्यू मेरा। इसका रो एंड कॉलम, तो इसका टोटल हॉरिजॉन्टल और इस कॉलम का टोटल, तो जो भी वैल्यू ले रहे हो उसका कंप्लीट हॉरिजॉन्टल टोटल एंड वर्टिकल टोटल, मतलब रो और कॉलम की जो वैल्यूज रहेगी, ये तुम्हारा आर हो जाएगा और ये तुम्हारा सी हो जाएगा। 225 इज माई आर एंड 200 इज माई सी। तो आर और सी कैसे निकालते हैं? जो भी वैल्यू रहेगा उसमें जो रो का टोटल रहेगा दैट विल बी आर, और उस वैल्यू का जो कॉलम का टोटल रहेगा दैट विल बी सी। दिस इज माई आर एंड दिस इज माई सी। नाउ सेकंड वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ई। ये मेरी सेकंड ऑब्जर्व वैल्यू 150, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे E12, विच इज R इंटू सी डिवाइड बाय एन। रो, दैट इज रो का टोटल 225, उस वैल्यू के कॉलम का टोटल 200 डिवाइड बाय एन विच इज फिक्स एवरी टाइम। दो जीरो कैंसिल। दिस इज 75, 75 इंटू टू, 150। दो वैल्यूज हो गई। हाँ, टू मोर वैल्यूज आर रिमेनिंग। ऑब्जर्व टू वन विच इज 25। अब मुझे इस वैल्यू का निकालना है कि आर और सी क्या रहेगा। तो इस वैल्यूज का रो का टोटल एंड कॉलम का टोटल। तो ये मेरा आर और ये मेरा सी। दिस इज माई ई टू, तो इट इज 75 इंटू 100 डिवाइड बाय एन इज ऑलवेज फिक्स 300, 25, and the last value is 50, 422। सेम वे मुझे भी इस वैल्यू का निकालना है, आर और सी कितना रहेगा। तो दिस इज माई आर का टोटल, दिस इज माई कॉलम का टोटल, 75 एंड 200।
that is E to 2. So 75 into 200. 75 3 is a 25 into 250. Finally, we got all the four expected value. Now we'll use the formula to calculate chi-square. Chi-square का formula is sum of observed minus expected the whole square upon expected. Sum of observed minus expected the whole square upon expected. We have four observed value and correspondingly their four expected value. We'll do one by one. सबसे पहले first observed value 75, उसका expected value 75. तो ऑब्जर्व 75 माइनस एक्सपेक्टेड भी 75 है, उनका होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लिखना है 75 प्लस सेकेंड ऑब्जर्व वैल्यू इज 150, expected value is again 150. The whole square divided by 150 plus third observed value 25, expected 25. Observed minus expected the whole square upon expected plus fourth value observed 50 है and expected 50 है. 50 minus 50 the whole square upon 50 और सबका मुझे समेशन लेना, मतलब सबका एडिशन लेना है. चलो सॉल्व करो. 75 minus 75 is 0, 0 का स्क्वायर 150 minus 150 again 0, again 0, again 0. तो सबको ऐड करेंगे, द आंसर इज व्हाट 0, बट इट इज नॉट द केस एवरी टाइम. हमेशा 0 नहीं आएगा. ये फर्स्ट केस था जो कि स्टैंडर्ड था और इसमें हर एक वैल्यू 0 का मतलब ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड सेम आ गया. तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ chi square. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट chi square. दैट्स इट. ठीक है. Boys, French fries, burger, and pizza. This is boys and girls. 6, 18, 20, 40, 24, 92. We'll make two columns of total. पहले horizontal ऐड करेंगे. 18 plus 6, 24, 60, 116. Horizontal addition करें. 24 plus 6, 30, 13, 20, 50. 92 plus 18, 110 plus 40, 150. 150 plus 50 is 200. ठीक. Now we'll calculate the expected values. तो ऑब्जर्व वैल्यू O11. तो फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हारे पास है 6. सेकेंड ऑब्जर्व वैल्यू है 20, 6, then 20. थर्ड ऑब्जर्व वैल्यू है 24. तो पहले E11 निकालें, एक्सपेक्टेड 11, फिर E12, E13. अरहान बताओ R इंटू सी डिवाइड बाय क्या होगा फर्स्ट में.
नाविका, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. तो बताओ फर्स्ट के लिए r इंटू सी डिवाइड बाय n क्या होगा? ये फर्स्ट वैल्यू है। तो व्हाट इज रो का टोटल, व्हाट इज कॉलम का टोटल? 24 and 50. यस। तो रो पे लिखेंगे 50 इंटू 24